Hello students, welcome to RM classes. Today we are going to start chapter light reflection and refraction, chapters in text solutions. So this video we are solving only in text questions. For exercise solutions I will upload a video after this means completion of this video. So students, let's start, but before starting I will request that if you are new to the channel then please subscribe the channel and press bell icon too. Because of this actually you will get all the notification of alerts and it will be helpful whenever I will upload video. You will get notification. You need not to search again and again or typing on search box. That is why. So student, the first question on your screen is define the principal focus of a convex mirror. And please mind my voice, actually I'm having cough and cold, so voice is not that clear. So the first question is define the principal focus of a concave mirror. So for this question, student, at first we will understand that in the case of concave mirror, when a ray of light incident on the reflecting surface, it will reflect back, and when it will reflect back, it will cut principal axis on a point. Same happens with all the lines parallel to the principal axis. It will cut principal axis over a particular point. So this point, that is why I have underlined point and actually. तो point का जो मतलब है यहाँ पे यही मतलब है कि we have to mention only point. अगर हम length करेंगे तो that will be the definition of focal length, pole से लेके f का distance. तो क्योंकि ये principal focus we are defining, that is why we are taking point. तो it is a point on the principal axis of the mirror at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis. कैसा direction है इसका? Parallel to the principal axis. Actually meet. So again we will focus on this term actually. So in the case of mirror and lenses we use two terms. एक होता है actually, एक होता है आपका appears to meet. Appears to meet we use for virtual images and actually meet we use for real images. So actually meet after reflection of the mirror. So this is the definition. Next question is the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? So what is radius of curvature, student? Radius of curvature is radius of hollow sphere of a glass. तो if we will take concave mirror, तो इसको अगर हम लेते हैं, इसका जो रेडियस मतलब ये वाले पॉइंट पे इसका मिड है यहाँ पे इसका, ठीक है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो डबल होता है एक्चुअली फोकल लेंथ के. तो जो फार्मूला बनता है, द फार्मूला वी विल गेट f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2, मीन्स r इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2. बस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और हम इसको कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ मिरर दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने स्टार पुट किया है. नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो वी हैव टू नेम अ मिरर जो इरेक्ट भी देगा और इनलार्ज्ड भी देगा ऑब्जेक्ट का. सो दिस इज द आंसर. कॉन्केव मिरर एक्चुअली, ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है. तो कॉन्केव मिरर गिव्स इरेक्ट अगर इमेज देता है, इनलार्ज्ड इमेज देता है, इट विल बी वर्चुअल, इट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर. तो ये बिहाइंड द मिरर है. Actually what happened, I have recorded whole video and then while editing what I saw कि इसमें वॉइस ही नहीं है, इसलिए ऑलरेडी मार्क्ड दिख रहे हैं आपको. एक बार मैं सब रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और उसमें वॉइस नहीं था. सो ये मार्किंग है सारा, मीन्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो का. तो अभी दोबारा से कर रही हूँ मैं इसको रिकॉर्ड. एनीवेज इट हैपन्स समटाइम्स. तो स्टूडेंट ये आंसर है. अ कॉन्केव मिरर गिव्स एन इरेक्ट इमेज. कैसे दे रहा है स्टूडेंट? वी विल अंडरस्टैंड दी रेज, जो लॉज है कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग जाती हैं. इफ़ ये इंसिडेंट रे अगर हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये क्या करता है, ये फोकस से होते हुए, सॉरी यहाँ पे फोकस से होते हुए इट विल रिफ्लेक्ट बैक. ठीक है, एक रूल ये हुआ, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से जा रहे हैं और ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. फिर एक रूल हमारा था कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है ऑन दी सरफेस, तो अगेन इट विल रीट्रेस द सेम पाथ, इट विल ट्रेस द सेम पाथ और इट विल रीट्रेस द पाथ. अपने ही पाथ को वो रिट्रेस करेगी, वहीं से वापस जाएगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द रे रूल्स what we will do, we will try to meet both the lines behind the mirror. So the point these lines are meeting behind the mirror is the point which will be the height of the image. So we will get a enlarged, means isse greater means higher than this, higher than object
जो हाइट है ऑब्जेक्ट का, इमेज का, वो हमको मिलेगा. सो दिस इज़ दी इरेक्ट भी है और इनलार्ज्ड भी है. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. Why do we prefer the convex mirror as a rear view? Again this is important question कि vehicles में हम यूज़ करते हैं ना, vehicles में हम यूज़ करते हैं ऐसे rear view mirror, और इसमें हमको एक large जो wide field view हमको दिखता है छोटे से मिरर में. सो these are the points. हमको आंसर्स ऐसे लिखना है इसमें. कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज. इरेक्ट इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर. अब जाके टेबल आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में. साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. और ये भी हम देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये स्मॉल बनाता है. मतलब अगर आपने ये लिया है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है सपोज, इधर तो यहीं से इसने रिट्रेस होते हुए वापस जाना है, ये ऐसे होगी, एंड यहाँ पे ये छोटा बनेगा देखो. तो व्हाट यू आर सीइंग दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इमेज, मतलब इमेज स्मॉल होता है. तो इरेक्ट तो है, इरेक्ट है, बट इट इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. तो स्मॉलर होगा तो क्या होगा, वी विल गेट वाइडर फील्ड व्यू एज दे आर और कर्व्ड आउटवर्ड. तो कर्व्ड, अगर कोई मिरर कर्व्ड है आउटवर्ड तो इट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर है तो ये दोनों कंडीशंस विल बी अप्लाइड. तो ये कंडीशंस अगर अप्लाई होंगी देन वी विल गेट अ लार्ज और वाइडर फील्ड व्यू. This was the fourth question. Next question is, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. तो still the question is based on mirror, तो हम याद रखेंगे this is convex mirror. और convex mirror के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो फोकस जो इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है इस पॉइंट पे. बिकॉज अगेन जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा वो कहाँ पे मीट करेंगी, दे विल, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दे विल अपीयर्स टू मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट दे विल अपीयर्स टू मीट एट द पॉइंट विच इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये प्रिंसिपल फोकस आप देख रहे हो राइट साइड में, साइन कन्वेंशन आई होप आपको क्लियर होंगे, ये राइट साइड में है, दैट इज वाई इट इज़ पॉजिटिव. ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, इसलिए कॉन्केव का नेगेटिव होता है. ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो राइट इज़ ऑलवेज राइट, मतलब प्लस प्लस पॉजिटिव होता है राइट, और जो लेफ्ट होगा फिर वो क्या होगा, लेफ्ट इज, बिकॉज लेफ्ट इज़ नॉट राइट, तो पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वो नेगेटिव होगा. ऐसे भी लर्न कर सकते हो अगर आप कन्फ्यूजन होता है लर्न करने में. ओके, सो द क्वेश्चन इज टू फाइंड एफ. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको साइन कुछ पुट नहीं करना है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव आएगा. और अगेन दिस इज द फार्मूला, एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 216 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्केव मिरर. अभी यहाँ पे कॉन्केव मिरर दे आर टेकिंग, कॉन्केव मिरर है तो साइंस क्यों गिवन में हमको मिरर्स या लेंसेज क्यों लिखने होते हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज मिरर्स एंड लेंसेज साइंस हमको अरेंज करने होते हैं, दैट इज वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट. अ concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image. Now see, मैग्नीफिकेशन कितना है, मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स है, लेकिन कॉन्केव मिरर और इमेज कैसी है, इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, वो इन्वर्टेड है इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, एम के पास नेगेटिव साइन रहेगा. नाउ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, लेफ्ट साइड है, देखो लेफ्ट नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन पुट करेंगे. Where the image located हमको v फाइंड आउट करना है. नाउ दिस इज द फार्मूला व्हेन वी यूज, हम माइनस साइन पुट करते हैं, दिस इज द फार्मूला व्हेन वी यूज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज. ये आपको क्लियर होगा. फॉर मैग्नीफिकेशन दिस इज द फार्मूला. और अगर आप हाइट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप हाइट यूज़ कर रहे हो तब h कहाँ पे प्लेस्ड है, h1 h2 कहाँ पे प्लेस्ड है, जो साइन आएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द पोजिशंस. तो ये हमारा डिफरेंट हो जाता है. सो दिस इज़ द फार्मूला. ये नाउ m इज इक्वल टू माइनस वी, यू कितना है -10 है, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और m है हमारा -3, ये तो हमने माइनस साइन कैंसिल कर दिया इधर, तो v इज इक्वल टू -3 इंटू 10 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. मतलब कि जो डिस्टेंस है इसका वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये लेफ्ट साइड ही इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो इमेज इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. नेगेटिव साइन हमको बता रहा है.
नाउ हेयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम रफली बोलें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली मेजरमेंट होता है जब हम कंपेयर करते हैं अब आपकी जो लाइट का ट्रैवलिंग होता है थ्रू दी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, लाइट कितनी स्पीड से डिफरेंट मीडियम से में ट्रैवल कर रहा है व्हेन वी आर कंपेयरिंग ट्रैवल ऑफ लाइट इनटू दैट पर्टिकुलर मीडियम टू दी एयर और वैक्यूम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है हमको। एक लाइन में अगर कहीं समझने के लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बता रहा है, ठीक है। इसकी यूनिट इसलिए नहीं होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉट हैव यूनिट। तो यूनिट इसलिए आप बोलेंगे बिकॉज दिस इज द रिलेटिव क्वांटिटी वेयर वी आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज। तो एक वैल्यू है हमारा जो आपका वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, और एक है हमारा किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो वी आर कंपेयरिंग टू स्पीड्स एक्चुअली। तो मीटर पर सेकेंड ये कैंसिल हो जाता है, दैट इज वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट विल नॉट हैव एनी यूनिट, कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दिस इज रिलेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ये एयर से ट्रैवल करते हुए आ रही है, एयर से ट्रैवल करते हुए आ रही है, एंड ऑब्लिकली स्लैंटिंग वे में इट इज एंटरिंग टू वाटर। डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई? दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि सी इफ दिस इज द डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम, इसको हम ऐसे समझेंगे, ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पे ये रेयरर मीडियम है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर है, रेयरर मीडियम है। आप इसको ऐसे समझो कि इफ़ देयर इज़ अ स्मूथ रोड और एकदम खाली है, तो आप कैसे करोगे, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, आप एकदम निकल जाओगे स्कूटी से जल्दी से। बट अगर क्राउडेड एरिया है तो क्या होगा, आपकी स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। अगर खाली होगी पूरी रोड तो आपकी स्पीड फास्ट रहेगी। सेम वे, ठीक है, सेम वे, समझ गए आप। तो रेयरर में क्या होगा, रेयरर जो केस होगा हमारा विच इज़ लेस डेंसर, उस केस में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है, जल्दी से आई ऐसे। दिस इज़ द नॉर्मल। तो नॉर्मल इज़ अ लाइन जब हम सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब ये इसको एक्चुअल में तो ऐसे चला जाना चाहिए, ठीक है, लाइन को ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये इंसिडेंट तो हुई, ठीक है, ये इंसिडेंट तो हो रही है, दिस इज इंसिडेंट एंगल। लेकिन इसका जो रिफ्रैक्शन होता है जब डेंसर में आएगी तो देखो स्लो होगी थोड़ा, जब ये स्लो होती है ना तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स इसकी बेंडिंग हो जाएगी, इधर बेंडिंग नहीं होगी इसकी, इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो बस यही एक्सप्लेन करना है हमको। लिखना कैसे वो देखते हैं, चलो। When ray of light travels from air to water obliquely, it bends towards the normal because water is optically denser than air. On entering water, speed of light decreases and the light bends towards the normal. ठीक है, और अगर उल्टा होता है, ये डेंसर मीडियम है और यहाँ से लाइट आ रही है एकदम रेयरर मीडियम में, तो ऐसे आएगी ये लाइट, ये इसका नॉर्मल है, इसको ऐसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब ये जाने से ऐसे नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, दूर चला जाएगी, एकदम फास्ट हो गई है ना तो थोड़ा सा दूर चले जाएगी नॉर्मल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, light enters from air to glass having refractive index 1.5. what is the speed of light in the glass? the speed of light in vacuum is इतना। the values given देखो क्या क्या दिया है इसमें, the light enters from air से glass में आ रही है लाइट, स्लो होनी है इसकी स्पीड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू ये है इतना 1.50। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमको ये फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में गिवन है 3 × 10⁸, बस इतना कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन है। तो द गिवन वैल्यूज आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन, सी इज गिवन, वी ग्लास में हमको फाइंड आउट करना है। नाउ दिस इज द फार्मूला, ये इसका फार्मूला रहेगा, यू विल पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट, तो इतना निकलेगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट। ये तो कम हो गई ना, एयर में कितनी है 3 × 10⁸, ज़्यादा है, ग्लास में कितनी है, कम है 2 × 10⁸। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन टेबल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, तो मैं कॉपी कर लिया इधर, वी विल कंपेयर।
values. So third question is find out from table 10.3 the medium having highest optical density. Also find the medium with lowest optical density. तो हमको एक टेबल देखनी है ये, और इसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो पहले आंसर देख लेते हैं फिर टेबल देखते हैं. तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम की होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होगा. क्या मतलब है इसका, क्या क्या रिलेशन है, देखो देखते हैं. हाई डेंसिटी का और एन का क्या रिलेशन है. देखो जितना डेंस होगा एन का वी से क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ये आप याद रखेंगे. देखो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, एन इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी होता है. मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मीन्स स्पीड ऑफ लाइट लेस. स्पीड ऑफ लाइट लेस मीन्स डेंसिटी मोर. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मीन्स उसकी स्पीड उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लीस्ट है. इसका मतलब वो जो मीडियम है हमारा वो ऑप्टिकली वो हाईली डेंस्ड है. समझ में आया ना. तो दीज थ्री प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू दिस वे, ऐसे रिलेट करती हैं. तो हमको दिख रहा है टेबल में साफ साफ कि यहाँ पे देख रहे हैं आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है. इसका मतलब डायमंड में जब हम लाइट रे पास करेंगे तो वो स्लोएस्ट मूव होगी. इसका मतलब ये इसकी डेंसिटी भी हाईएस्ट होगी. एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लीस्ट है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट होने का मतलब कि इसका स्पीड एकदम फास्ट होगा, हाईएस्ट होगा. मतलब हाईएस्ट स्पीड का मतलब ये लोएस्ट ऑप्टिकली डेंस होगा. सो दिस इज द रिलेशन. Fourth question is you are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? हमको चेक करना है. तो अभी हमको समझ आ गया है कि रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो फास्टेस्ट किस में होगी, देखो सबसे ज़्यादा v की वैल्यू, अगर v की वैल्यू ज़्यादा तो n की वैल्यू कम. तो जिसका सबसे कम n होगा उसमें फास्टेस्ट होगी. तो ये रिलेशन बताना है आपको और आंसर लिखना है. तो यहाँ पे देखो टर्पेंटाइन का ये है, कैरोसिन का ये है, वाटर का ये. तो किसकी वैल्यू लीस्ट है, n की वैल्यू किसकी लीस्ट है, वाटर की. तो n फोर्थ क्वेश्चन, हाँ ऐसे लिखेंगे आप. लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द मीडियम विच इज मोर ऑप्टिकली रेयर. रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी इज दिस. फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन show that refractive index is inversely proportional to speed of light in the medium. Less value of n means greater value of v. तो लेस वैल्यू ऑफ n मतलब वाटर की लेस वैल्यू है, इसका मतलब इसकी स्पीड बहुत तेज होगी. देयरफॉर लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉलेस्ट. बस सिंपली आपको इसका ऐसे आंसर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. इसको मार्क करेंगे. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है देखते हैं. देखो n का वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटेस्ट. इवन मीन्स इस टेबल में तो ग्रेटेस्ट है. तो n इज इक्वल टू 2.42 फॉर डायमंड शोज दैट इट हैज़ अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज स्मॉलेस्ट. तो स्मॉलेस्ट है इसमें स्पीड ऑफ लाइट. या आप ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. देखो इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी. n का वैल्यू कितना है, ये है ना 2.42 है डायमंड का, और यहाँ पे c का वैल्यू आएगा, मतलब एयर में स्पीड आएगी और यहाँ पे डायमंड में स्पीड आएगी. तो डायमंड में लाइट की स्पीड इतने टाइम्स लेस है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एयर. मीन्स वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतने टाइम्स मोर है इन कंपैरिजन टू डायमंड. समझ रहे हैं ना. 2.42 का मतलब क्या हुआ, 2.42 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी. मतलब कि अगर डायमंड में स्पीड 1 है तो ये आपके वैक्यूम में कितनी है, 2.42 टाइम्स ज़्यादा. ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप. इसमें अच्छा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपको और इसमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे. तो दिस इज़ ऑल्सो वे टू एक्सप्लेन दिस आंसर. तो कोई भी अगर ऐसे पूछते हैं ना तो दिस इज़ दी, आई थिंक दिस इज़ दी बेटर वे देन दिस टू एक्सप्लेन दी आंसर. तो इसको भी आप ऐड कर देंगे इस आंसर के साथ. तो 5 ये क्वेश्चन हो गया.
Now questions related to power. Define one diopter of power of a lens. तो one diopter is the power of the lens of कितना जिसका focal length होता है 1 मीटर. ये relation होता है इसका if f is in centimeter. Next question है convex lens है. Given क्या है? Convex lens real inverted image of needle at a distance of 50 centimeter from it. तो ये image है needle की. p का value है 50 centimeter. ओके रियल है इन्वर्टेड है और वेयर द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हम प्लेस करेंगे यू फाइंड आउट करना है हमको. इफ़ द इमेज इज इक्वल साइज जो है h मतलब हाइट जो है उसका आई का और ऑब्जेक्ट का दोनों का सेम है. तो देखो सेम हाइट कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को विच इज़ 2f. आई रिपीट कब होता है इक्वल साइज कब होता है आप चेक करेंगे. इक्वल साइज तब होगा जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं. सी पे यहाँ पे रखेंगे तो इमेज भी सेम फॉर्म होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. इसका मतलब और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2f होता है. ये हमको मालूम है. सी मैंने कैपिटल सी बनाया ये. दिस इज 2f. तो नाउ वी नो डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 2f. इसका मतलब v इज इक्वल टू 2f. तो f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 2. मतलब f का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर. अब हम ये वैल्यू पुट करके p का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. u का वैल्यू भी पता चल गया. ठीक है ये u का वैल्यू v इज इक्वल टू u कर दो इसको. 50 सेंटीमीटर u है f 25 सेंटीमीटर. तो 25 हम ये वैल्यू रखेंगे 4 डायप्टर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. फोकल लेंथ कितना है? 2 मीटर है. कॉन्केव लेंस है स्टूडेंट्स. कॉन्केव लेंस है. कॉन्केव लेंस मीन्स याद है आपको कॉन्केव लेंस जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्केव लेंस में आपका जो मेन जो आपका प्राइमरी जो फोकस होता है दैट इज़ लेफ्ट साइड. तो इसलिए हम इसको माइनस लेते हैं. ये माइनस लिया हमने इसको. तो हम क्या करेंगे f को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला आप 100 लेते हो या तो 1 डिवाइडेड बाई f भी ले सकते हो. इफ़ यू विल टेक 1 डिवाइडेड बाई f तो इसका मतलब ये मीटर में है. समझ रहे हैं ना सिंपल मैथ्स. और अगर आप 100 डिवाइडेड बाई f है इसका मतलब ये सेंटीमीटर में है. तो चलिए हम इसी में कन्वर्ट करते हैं इसको. सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 100 डिवाइडेड बाई f इन सेंटीमीटर माइनस 100 माइनस साइन करेंगे बिकॉज कॉन्केव लेंस है. 100 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू दिस. तो ये आपका आंसर आएगा. तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ये कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स वीडियो. Very soon I will upload exercise solutions also. Thank you so much.